بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ پاک آپ کو انبیاء کی دنیا میں کامیاب کر دے۔ اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ ایک راز کی بات شیئر کرنے لگی ہوں، بہت ہی نایاب، بہت ہی اعلیٰ راز کی بات ہے۔ طریقہ، وظائف کا طریقہ اور عملیات کے بارے میں نے آپ کو بہت بتایا، لیکن آج میں آپ کو جن موکلوں کے اندر سیاہی کی ضرورت ہوتی ہے آج اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ سیاہی کی تیاری، بہت سے لوگوں کے کمنٹس آئے، بہت سے لوگوں نے سیاہی مجھ سے کہا کہ ہمیں آپ بنا کر دیں، اگربتی دیں۔ میں نے اگربتی کی سیاہیوں کی ویڈیو آپ کو پوسٹ کر دی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ پہلے آپ خود کوشش کر لیں، اگر آپ لوگوں سے نہیں بنتی پہلے آپ لوگ کوشش کر لو، اگر آپ مجھ سے نہیں بنتی تو پھر آپ مجھے کہیں تو پھر میں جو ہے سیاہی بنانے کی کوشش کروں گی۔ آپ کو سیاہی جہاں پر بھی آپ رہتے ہوگے پوسٹ کر دی جائے گی، لیکن پہلے خود تو ہمت کریں، کیونکہ جب اس کے ہدیے کی بات آئی تو بہت سے لوگوں نے کہا ہمیں ہدیہ بتائیں اس کا کتنا ہے، تو میرے ضمیر نے اور میرے دل نے اس بات کو گوارا نہ سمجھا۔ میرے دل نے کہا کہ یہ میرے خدا کی طرف سے ایک لالچ نہ آ جائے، میں کہیں گنہگار نہ ہو جاؤں۔ اسی وجہ سے میں نے پھر سب کو یہ کہا کہ آپ لوگ پہلے کوشش تو کرو، اگر کوشش کرنے سے بھی نہیں بنتی تو جب تک میں آپ لوگوں تک پوسٹ نہیں کر سکتی یا آپ لوگوں تک نہیں بھیج سکتی، تو اگربتی جو عام ہے اچھی والی مہنگی والی اگربتی کا استعمال آپ کر سکتے ہو، گلاب کی اگربتی کا استعمال کر سکتے ہو۔ یہ میں نے بہت ضروری سمجھا کہ میرے ضمیر نے کہا کہ کہیں نہ کہیں میں کوئی غلط بات اپنے سبسکرائبر سے یا اپنے بھائیوں بہنوں سے نہ کہہ لوں، تو اس وجہ سے۔ اور آج سیاہی پر بات ہوگی۔ میں نے سیاہی بھی بہت طرح کی بتائی، لیکن آج میں مکمل طریقے سے آپ کو جو سیاہی بنتی ہیں اس کے بارے میں آج بتاؤں گی۔ جب آپ موکلین پریوں کی حاضری نقش پہ کرتے ہیں، ایک تو وہ طریقہ آسان ہے، اس میں کوئی پرہیز بھی نہیں ہوتا اور وہ بآسانی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے عمل کی جو سیاہی تیار کرنی ہے، جس میں نے سیاہی کا ذکر کیا ہے، اس عمل میں جب آپ سیاہی تیار کرو گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بازار سے سرما سیاہ دستیاب ہے، لیکن جو بازاری سیاہی ہے وہ استعمال نہیں کرنی، کیونکہ یہ خاص سیاہی ہوتی ہے اور خاص طریقوں سے ہی تیار کی جاتی ہے۔ اس پہلا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ 2 اینٹیں لے لیں، اینٹیں، ٹھیک ہے؟ 2 اینٹیں لے لیں، 2 چراغ لے لیں، جنہیں دیے بھی بولتے ہیں، چراغ بھی بولتے ہیں، دیے بھی بولتے ہیں۔ میں اردو میں ان کو چراغ بھی بولا جاتا ہے، پنجابی میں لوگ ان کو دیے بولتے ہیں۔ جو بزرگانے جب دربار شریف ہوتے ہیں وہاں پر وہ دیے رکھے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی 2 دیے لے سکتے ہیں اجازت سے، ان سے اجازت لے کر وہ دیے 2 لا سکتے ہیں، لیکن وہ کسی کے استعمال میں ہوں گے۔ آپ نے کوڑے دیے لینے ہیں، بالکل پاک، بالکل ان کو کسی تیل تک نہیں چھوا نہ ہو، پانی نہیں نہ اس کو چھوا ہو، آپ نے وہ دیے لے لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اینٹوں کا آپ نے چولہا بنا لینا ہے جس میں سے دھواں اوپر کی طرف، جب آپ چولہا بناؤ گے تو وہ ایک ایسے چولہا سا بن جائے گا اینٹوں کا، تو وہ دھواں اوپر کی طرف اڑے گا، اس کا اس طریقے کا بنائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو دھوئیں اوپر کی طرف اڑے اور دھواں نکلنے کی جگہ تنگ ہو، جیسے آپ اینٹیں رکھتے ہو 2 تو اتنی تنگ رکھو کہ اس بس تھوڑی سی جگہ سے وہ دھواں
ऊपर को उठे, ठीक है। तंग होना चाहिए, धुएं की जगह तंग होनी चाहिए, ताकि धुआं ज्यादा से ज्यादा अतराफ में ना फैले या इधर उधर ना फैले, बल्कि जहां पर आपने धुआं मतलब कि इकट्ठा करना है बस वहां तक ही फैले। आपने फिर क्या करना है कि आप उस ईंटों के दरमियान थोड़े से कोयले रख दीजिएगा। आसानी के लिए बता रही हूँ, कोई और चीज इस्तेमाल ना कीजिएगा। चूल्हे के दरमियान आपने कोयले रख देने हैं। इन कोयलों के ऊपर कफूर टिक्कियों में होता है, छोटी छोटी टिक्की होती हैं। 10 रुपए की एक टिक्की कफूर की पाकिस्तान में मिलती है, और निजी इलाकों में 8 रुपए की 6 रुपए की कफूर की टिक्की मिलती है। छोटी छोटी टिक्की होती हैं। आपने 10 टिक्कियां ले लें, 5 टिक्कियां ले लें, जितनी आपको जरूरत है। आपने कफूर की टिक्कियां उन कोयलों के ऊपर, दहकते कोयलों के ऊपर आपने वो कफूर की टिक्कियां रख देनी है, और उस हिस्से में से, ईंटों में से कफूर का जो धुआं उठेगा ना, चूल्हे में से जो धुआं निकलेगा ना, उसकी जगह आप ऐसा कीजिएगा मट्टी की प्लेट, उसकी जगह आप ऐसा कीजिएगा मट्टी की प्लेट। अगर आप लोगों को मट्टी की प्लेट, कोई जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो आउट ऑफ कंट्री से हैं, बाहर से हैं, अब वो मट्टी की प्लेट नहीं ढूंढ सकते, तो उनके लिए ये है कि कोई चीनी की प्लेट ले लें, मट्टी की ले लें, स्टील की प्लेट ले लें, ठीक है। वो ये मेरे उनके लिए बताया है जो हमारे पाकिस्तान से बाहर के लोग हैं। जैसे कुछ बहनें मेरी ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, कुछ यूएई से भी हैं, और यूके से भी हैं, और कुछ और कंट्री से भी हैं। तो उन्होंने मुझसे गुजारिश की है कि हमें आप तरीका बताएं, हमें यहाँ से नहीं मिलती ये चीजें। तो उनका यही तरीका मैंने बताया है कि वहां पर भी अगरबत्ती और काजल नहीं हम पहुंचा सकते, क्योंकि यहाँ से पार्सल इस तरह की चीजों के नहीं जाते पाकिस्तान से। तो आपने उन लोगों के लिए भी मैंने बताया है, क्योंकि उन्होंने मेरे मेल पर बहुत ज्यादा शोर मचाया हुआ है, तो ये वीडियो मुझे मजबूरन बनानी पड़ी है। आपने क्या करना है, काफूर का जो धुआं निकलेगा उस जगह से वो धुएं को आप प्लेट से इकट्ठा कर लें। काफूर का धुआं ही इकट्ठा करना है। जब प्लेट के ऊपर धुएं की तह जम जाएगी ना, जब प्लेट आप उसके ऊपर औंधी करके रखेंगे तो धुएं की तह जम जाएगी, काले काले जर्रे उसमें इकट्ठे होने लग जाएंगे। कफूर के काले जर्रे, जब कफूर जलेगा तो उसके जर्रे उस प्लेट में इकट्ठे होंगे, ठीक है। आपने यही जर्रे आपने इकट्ठे कर लेने हैं। इसके अंदर आपने जो जर्रात हैं, ये एक हाजराती स्याही है। मोकलों को, परियों को और बुजुर्गाने दीन की रूहों को हाजिर करने के लिए एक नायाब स्याही आपको तैयार करना बताई जा रही है। गौर से सुन ले, गलती की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने बहुत आसानी से आपको बता तो देती हूँ, ठीक है, समझाती भी बहुत मतलब किस तरीके से हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी कोई गलती करो या स्याही ठीक तैयार ना करो, फिर तो ये गलत बात है ना। तो आपने उन जर्रात को आपने तेल ले लेना है, तेल या कोई अत्तर भी तेल का ही बना होता है, आपने इसके अंदर मिला लेना है। आपने अगर कोशिश करें चमेली का तेल, ठीक है, अगर कोशिश करें गुलाब का तेल, कोशिश करें गुलाब का अत्तर, इन तीनों में से कोई भी आप तेल जो सा है इस्तेमाल कर लें। वैसे हम गुलाब का अत्तर इस्तेमाल करेंगे, वो नायाब है, वो बाहर से किसी भी जो आउट ऑफ कंट्री है, सिटी है, वहां से मिल जाएगा आपको। गुलाब का अत्तर आराम से मिल जाएगा, रोगनी चमेली भी आपको आराम से मिल जाएगा, आप वो लगा लीजिएगा। उसके अंदर जब डालेंगे ना तो देखिएगा वो एक स्याही काले रंग का एक काजल सा तैयार होने लग जाएगा। जब उंगली के साथ या किसी चीज के साथ आप उसको करेब के इकट्ठा करोगे तो देखिएगा क्या नायाब स्याही तैयार होती। बस आपने दुराने हाजरात जो मैंने आपको नक्श पेश किए हैं, आपने वो दुराने हाजरात जो हैं और वो आपने स्याही लगानी है। और एक मेरे भाई थे, उनके कमेंट्स आए हुए थे कि वो उनने हाजिरी की, बच्चे पर हाजिरी हो गई है। तो मेरे भाई अल्लाह के वास्ते लाइव ना बताओ, खुदा के लिए, अब्दुल समद उनका नाम है मेरे ख्याल उनके चैनल का, लाइव ना बताओ। आपके पास जो अल्लाह ताला ने करम नवाजी आपके ऊपर कर भी दिया ना, वो भी चली जाएगी, लाइव ना बताओ। ये ऐसी दुनिया है, ये ऐसी दुनिया के लोग हैं, ये सुन लेते हैं, आपके साथ ही रहने लग जाते हैं। आप लाइव ना बताओ, लाइव बताओगे तो यकीन मानिए चले जाएंगे। मैं खुद, मुझसे बहुत से लोग कहते हैं आपके पास परी है कि नहीं, आपके पास मोकलात है कि, मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास जो भी है ना वो मुझसे चले जाएंगे, ठीक है। मैंने जहां उनका नाम लिया नहीं और वो गए नहीं, ये बात हमेशा याद रखें। कमेंट्स बॉक्स में मैंने ईमेल दी है, वो राब्ते के लिए आपकी जगह है, वहां पर राब्ता करें, इस तरह सरेआम ना करें। नंबर 2, हाजराती मामूल
कि अंगूठे पर लगाने वाली स्याही आज मैंने आपको बहुत नायाब तैयार करना बता दी है। और फिर आपने शीशे पर, अगर आपके उन्होंने कहा है किसी वीडियो में कि शीशे पर स्याही लगानी है तो वही स्याही आप लगाएंगे। अगर आपको ये स्याही भी बनाना मुश्किल लगती है तो जब आपको मैं एक और स्याही बता देती हूँ। आपने क्या करना है, हाजरात की स्याही बनाने का जो तरीका है, ठीक है, वो जो मैंने आपको पहले बताया है ना, वो यही है। ठीक है, आप लोग ये कर सकते हो। और जब दूसरा बताने लगी हूँ वो सिर्फ आपकी आसानी के लिए और आपकी मेहनत को बचाने के लिए, जो मैं अब स्याही बताऊंगी वो आप कर लीजिएगा। स्याही में अगर आप सुरमे का इजाफा कर लें, काजल नहीं आप इस्तेमाल करेंगे, काजल मेडिसिन का बना होता है, तो आप खाली सुरमे का अगर उसी स्याही के अंदर, कपूर वाली स्याही के अंदर सुरमे का इजाफा करेंगे तो वो स्याही गाढ़ी और बहुत तेज बन जाएगी। ये आसानी के लिए आपकी बता रही हूँ, वरना वो जितनी वो स्याही बनेगी वो ही माशाल्लाह बहुत नायाब होगी। अगर आप चाहते हैं कि स्याही कम है, हाजरात के लिए बार बार करनी पड़ती है, तो फिर आप सुरमे का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और ताकि स्याही गाढ़ी हो जाए। इससे भी अगर आसान तरीका आप चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने रोटियां पकाने वाला तवा, रोटी पकाने वाला तवा, तवे के नीचे स्याही को जमा कर ले, तवे के नीचे वाली स्याही को जमा कर ले। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो स्याही कोयलों से, लकड़ियों से वो जमा हुई हो। ये ना हो कि वो गैस के ऊपर रख के आपने वो मट्टी के चूल्हों पे, मट्टी के तेल वाले चूल्हों पे और सिलेंडर्स पे, या फिर आपने बहुत से बाहर के लोग होते हैं वो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, मट्टी के चूल्हे इस्तेमाल करते हैं, वो माजरत के साथ जो होते हैं मट्टी के तेल वाले चूल्हे, माजरत के साथ मट्टी के तेल वाले चूल्हे जो इस्तेमाल करते हैं, उनसे आपने दूर रहना है। ठीक है, तो आपने ये लाजमन करना है। ये एक मैं आपको स्याही का तरीका बता रही हूँ। आपने जो सुई गैस के चूल्हे उसका तवा नहीं लेना, उसकी स्याही नहीं लेनी, लकड़ी जो है सिर्फ लकड़ी वाले चूल्हे की, जैसे हम किसी लकड़ी वाले चूल्हे को जलाते हैं तो उसके नीचे, तवे के नीचे कितनी स्याही लग जाती है या वो कालक सी जम जाती है, हाथ लगाओगे तो फील होता है। तो आपने वो स्याही तमाम की तमाम इकट्ठी कर लेनी है और उसके अंदर आपने रोगनी चमेली, ठीक है, या फिर गुलाब का अत्तर लगा लेना है। उसके अंदर रोगनी चमेली या गुलाब का अत्तर डाल के वो चूल्हे की जो इस्तेमाल हुई स्याही है वो भी आप रख सकते हैं। ये 2-3 स्याही मैंने आपको तरीके की बता दी हैं, आप ये कर सकते हैं। इसी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसी वीडियो के साथ आपसे इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो जरूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आप देखिएगा कि बहुत सी कामयाबी आपको होगी हाजरात के मामले में जब आप हाजिरी करवाते हो। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि पहले आप हाजरात करवाना सीखें। जब आप हाजरात से आपका दिल मजबूत हो जाएगा, बुलंद हो जाएगा, फिर आप मुकलात के परियों के अमल कीजिएगा। ठीक है, इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी परेशानियां, दुख तकलीफें खत्म कर दे। अल्लाह पाक आपको सगीरत कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह पाक आपको 5 वक्त का